this session. Okay, so I'll go a little fast because you are the only one today. Snehata is not present. So let's be hyper interactive. I'll record the session and send it to her. Okay. What I presume is most of the things are basic. So for us, it should be fast. Okay. Okay. But yes, as and when you think that you need to stop me, you can stop me. Anyways, I'll keep it interactive. Okay. So where did you go? आप कहाँ गए? Okay. Did you go? Okay. Did you go home? Short answer, yes, I did. Negative, no, I didn't. Where did you go? Place, home. So where is place? Where did you go home? Answer is home. So where did you go? Home. Were you at home? Yes, I was. No, I wasn't. Negative. Where were you? Home. So these are few ways of asking question. Did is this to confirm yes or no? Where, it's the place. Were Right. again is used to confirm the place. Were you at home? Yes. Where is again place. Okay. Did you drive? What is happening, man? एक मिनट रुको. Okay. Did you drive because you were late? Short answer, yes, I did. Negative, no, I didn't. So it's an elaborative question. A question with purpose. Did you drive because you were late? Why did you drive? क्यों? Because I was late. Did Ali go at 6? Yes, he did. Or no, he didn't. When did Ali go? At 6. Or what time did Ali go? At 6. So these are different ways of asking questions. Why, kyun, when, and what time? It's basically time. Did is always confirmation. Here it is confirmation. What time did Ali go? At 4. When did Ali go? At 4. Both means same. Okay. It could be at 12 o'clock, around 4:30, on Friday, last month, November. Okay. So do you have any clarification in this? Around No, 4:30 is what? Not exactly 4:30. It could be 3:50. It could be 4:10. It could be 4:40, or it could be 4:35, or it could be 4:25. It is not exact 4:30. It is plus or minus. right. Everything is clear, right? Please. Okay. But one thing which you have to focus here is there is a slight difference. Till here it is same. This block is same for what time and when. Okay. What is additional is day, month, and date. So something which can be noticed is what time and when is common when we are talking about a specific time. Okay. But what time cannot be used for a specific day, month, and date. Okay. That's something which can be observed. Okay. So what time and when are same. Only when it comes to day, month, and date, it is not same, or year also. Okay. Right. All right. So now
let's look at the conversation. To learn English. Situation is what? To learn English. I went to class to learn English. What should be the question asked by this person? I went to class to learn. Did you Yes. did you go to class for learn English? Listen, don't focus on to learn English. To learn English is the situation. It's like the movie's name. I went to the Okay. class. I went to class to learn English is the movie dialogue. So based on this dialogue, what should be the question? The dialogue is this. This part you focus. Don't focus on this part. So Did based you on, go to yeah. Yes, yes. Tell me. did you go to class? Okay. Did Did you you go go to to the class? That's one way of to asking. Okay. G? Please Did you repeat. go to class? Your voice is breaking, Vipin. Please repeat again. Did you go to class? That is one way of asking question. Second way, Okay. Uh, what what did you go to class? what did you कैसे होगा? What is क्या? The meaning of what is what? What का मतलब क्या होता है? क्या. Where का मतलब कहाँ. तो what did you go to class नहीं बोल सकते ना हम लोग. You should Did not. you go to class? Okay. Where did Why? you? Okay. So यहाँ पे purpose है. Why did you go to class? I went to class to learn English. There is a purpose. Okay. Did you go to the class is also fine. But here, when we ask why is always for purpose. Why did you go to class? I went to class to learn English. So purpose was to learn English. Okay. Okay. Same thing is getting, the conversation is getting continued. Answer there here, yes, I did. What is that for? I ate breakfast. So what should be the question? Did you eat breakfast? Did you eat breakfast? Very good. Nothing. I didn't eat breakfast. So now the conversation is continuing. Now this lady is asking the man. So what should be the question? Did you eat breakfast? Did you I eat breakfast? didn't eat. What did you eat for? What did you eat for breakfast? See, the answer is nothing. No. I didn't eat breakfast. So what could be the question? What did you eat for breakfast? Then he says the answer is nothing. I didn't eat breakfast. Breakfast. Got it? Yeah. So what is always क्या? क्या खाया आपने breakfast में? Okay. Let me repeat once again for you. See, the conversation here is to learn English. The purpose is to learn English. I went to class to learn English. So the question should be, why did you go to class? I went to class to learn Right. English. Next, did you eat your breakfast? Did you eat breakfast? Yes, I did. I ate breakfast. What did you eat for breakfast? Nothing. I didn't eat breakfast. Okay. What did Joe see? जो ने क्या देखा? We are trying to understand what. So question word. Did Joe see a bat? Yes, he did. He saw. We are not sure. We are very sure what is that Joe has seen already. Joe ने क्या देखा है अपने को ऑलरेडी पता है. क्या देखा है उसने? बैट देखा है. Bad. उसको डबल चेक करने के लिए, कंफर्म करने के लिए हम लोग खाली डिड यूज करते हैं और कहते हैं डिड जो सी अ बैट. आंसर यस और या तो फिर नो.
he saw a bat. Yes, he did. This we have covered yesterday itself. But when we are Yes. not sure, क्या देखा है उसने, हमको नहीं पता है. It's a big question mark. उसने क्या देखा अपने को नहीं पता है. Then we use this What word did- what. Yeah. What? What did Joe see? And the answer is a bat, or he saw a bat. Okay, so what is Kia? Again, is Jen eating an apple? अपने को पता है क्या खा रही है. वो खा रही है एक एप्पल. तो उसको डबल चेक करने के लिए, कंफर्म करने के लिए हम लोग बोल रहे हैं, is Jen What? eating an apple? Yes, she is. She is eating an apple. Contraction क्या होगा? She apostrophe s. She is eating an apple. But if we don't know what she is eating, then what is Jen eating? Clear? An apple. Clear. She is eating an apple. Okay. But then when we talk about this tense is presently वो क्या खा रही है? We have already finished present progressive also. Present progressive माने अभी exactly इस समय पे वो क्या खा रही है? What is Jen eating? Okay. या तो फिर the first question is क्या वो एप्पल खा रही है अभी? What is Right? Jen eating apple? Is Jen eating an apple? Yeah. क्या वो एप्पल खा रही है अभी? Right? That is the first one. Second one. अभी वो क्या खा रही है? Second one is अभी वो क्या खा रही है? An apple. She is eating an apple. Okay. तो इसमें ऐसा भी आ सकता है ना सर, क्या वो अभी एप्पल खा रही है? What is Joy eating apple? देखो हम हर चीज को हिंदी में इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं कर सकते. भले क्या वो एप्पल खा रही है उसमें क्या लग रहा है, पर उस इंग्लिश में वॉट नहीं लगेगा पहले सेंटेंस में. इसका मतलब ही वॉट हो गया वहां पे. समझ में आया? क्या वो एप्पल खा रही है, वो ये वाला सेंटेंस है, ये वाला क्वेश्चन है. पर उसमें हम व्हाट नहीं यूज कर सकते. ठीक है? Right. लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड नाउ. इसको निकाल देते हैं. क्या वो एप्पल खा रही है, ये हो गया एग्जाम्पल सी. पर इसमें हम लोग व्हाट नहीं लगा सकते. यही अंतर है. अगर आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करोगे हिंदी टू इंग्लिश, मुश्किल हो जाता है कि द वे हिंदी स्पोकन इट इज डिफरेंट. इससे पहले मैंने एक्टिविटी किया था, याद होगा आपको. मैंने वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन कराया था, याद है आपको? सर. डिड वी डू एन एक्टिविटी वेयर हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करना था, इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करना था? किया या नहीं किया? हिंदी वाला तो नहीं किया सर मैंने. नहीं किया तो अभी कर लेते हैं. आप एक सेंटेंस लिखो मेरे बारे में, हिंदी में आप बोलो. एक कुछ भी सेंटेंस. बोलो, मैं हाँ, मेरे आप बारे में बोलो कुछ मैं भी बोल दो. कुछ भी बोल दो मेरे बारे में. आप बोलो मैं लिखता हूँ. आप जो बोलोगे मैं ट्रांसलेट करता हूँ. नहीं, मेरे बारे में आप लोग करना चाहते, मेरे बारे में कुछ भी एक सेंटेंस बोल दो हिंदी में. आपको क्या, आपका अनुभव कैसा रहा, जो भी रहा मेरे बारे में, जो भी सोचते हो आप बोल दो. नेगेटिव बोलो, कोई बात नहीं, पॉजिटिव मत बोलो. नहीं वैसा कुछ नहीं है जी. मैं तो जस्ट बोल अपने दो आप ना, को कुछ चेक भी कर रहा था मत करो, कुछ भी बोल दो. सर. मैं एक्चुअली चेक कर रहा था ठीक ठाक मेरा भी चल रहा है यहाँ कैसे. तो अगर आप हिंदी बोलोगे तो मैं उसमें ट्रांसलेट करता हूँ. एक बार ट्राई करता हूँ ऐसा. नहीं, सोच रहा वो था. बाद में करेंगे. पहले मेरा वाला एक्टिविटी करो. आप मेरे बारे में एक सेंटेंस बोलो. आप कुछ भी बोलो, हिंदी में बोलो, इंग्लिश में नहीं बोलना है. आपका आएगा सर. जैसे आपका टीचिंग स्टाइल, मतलब पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है. ये लिखो अभी आप ऐसा. हिंदी में. आपका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है. ये लिखना है आपको हिंदी में भी. फटाफट लिखो. आपका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है. यही होगा ना हिंदी का सेंटेंस? मैं तो नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, टाइम लगेगा मेरे को माउस मैंने से लिखा लिखने. है. आपका योर आपका पढ़ाने का पढ़ाने का तरीका बहुत तरीका अच्छा. बहुत अच्छा है. योर अभी इसको आप ट्रांसलेट करो. अभी इसको आप योर ट्रांसलेट करो. वर्ड टू वर्ड करोगे, पर वर्ड टू वर्ड करोगे. आपका का क्या होगा? पहला वर्ड था आपका. योर योर आपका का क्या आएगा? योर योर. वेरी गुड. आपका का हो गया?
योर, योर, मैं ये टाइप कर लेता हूँ, ठीक है, योर। उसके बाद में क्या हुआ? पढ़ाने का, टीचिंग, टीचिंग स्टाइल, पढ़ाने का टीचिंग ही होगा ना, स्टाइल कहाँ पे आया? टीचिंग हुआ उसमें। पढ़ाने का आगे तरीका है ना सर, टीचिंग स्टाइल कर दिया। तो का क्या होगा? पढ़ाने का ऑफ होता है, ठीक है, ऑफ, टीचिंग ऑफ, योर टीचिंग ऑफ। तरीका, व्हाट इज तरीका? स्टाइल, STYLE, स्टाइल। बहुत, वेरी, बहुत अच्छा है, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी गुड गुड है, अभी इज कर सकते हैं, इज। इज, राइट। नाउ अब देखो, आप अगर आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करते हो सेंटेंस को, क्या हो गया? समझ रहे हो? योर टीचिंग ऑफ स्टाइल वेरी गुड इज। समझ में आ रहा है? अब इसी को अगर हमको करेक्ट इंग्लिश में लिखना है तो क्या होना चाहिए सेंटेंस इसका? योर टीचिंग स्टाइल इज, yes, योर टीचिंग स्टाइल इज वेरी गुड, teaching style is very, ठीक है, ये हुआ ना। अब हमको रिवर्स करते हैं इसको हम लोग अब ट्रांसलेट करते हैं हिंदी में वर्ड टू वर्ड। योर का क्या होगा? तुम्हारा, आपका, जी, आपका हो गया। जी, टीचिंग हो गया, पढ़ाना। जी, लिखो, आपका पढ़ाना। स्टाइल क्या होगा? तरीका। तो आपका पढ़ाना तरीका इस क्या होगा? है। तब तक आपने क्या लिखना चाहिए था? आपका पढ़ाना तरीका है। वेरी क्या होगा? बहुत। बहुत, गुड क्या होगा? अच्छा। तो क्या हो गया? कुल मिला के पूरा सेंटेंस ट्रांसलेट करेंगे अगर हम वर्ड टू वर्ड इंग्लिश कर टू हिंदी में, आपका पढ़ाना तरीका है बहुत अच्छा। ठीक है, तो इस एक्टिविटी से हम लोग क्या सीख रहे हैं? हर भाषा एक गाने जैसा है, ठीक है। आप एक गाने का ट्यून दूसरे गाने में लगाओगे तो बेसुरा बन जाएगा वो दूसरा गाना। समझ में आया? Every language is like a song and every song has got its own subjective tune and rhythm. Don't try to translate word to word. ठीक है, जी समझ सर, में आया? That is why जब हम लोग हिंदी में इसको ट्रांसलेट करते हैं तो यहाँ पे क्या लग रहा है? वर्ड क्या है? क्या जन एप्पल खा रहा है, पर व्हाट नहीं यूज कर सकते हम लोग इंग्लिश, ठीक है, क्योंकि क्या का ट्रांसलेशन क्या होता है? व्हाट होता है? क्लियर है सर अभी, सही है ना? ठीक है, तो इसका जी, अर्थ तो यही आ रहा है कि क्या जन एप्पल खा रहा है, पर हम लोग व्हाट यूज नहीं कर सकते। इजी हो गया व्हाट यहाँ पे, इसका मतलब ही क्या हो गया यहाँ पे, ठीक है, जी राइट। इसको बंद कर दूं मैं, ओके। बट व्हाट इज जेन ईटिंग? तो क्या है जेन खा रहा? नहीं होता ना मीनिंग, व्हाट इज जेन ईटिंग, क्या खा रहा है वो, क्या। देखो, जब हम लोग उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं तो हो क्या रहा है, देखो पहले कौन सा वर्ड ट्रांसलेट हो रहा है? ये वाला हो रहा है, क्या जेन। दूसरा हो गया जेन, पहला ये हुआ क्या जेन, क्या जेन खा रहा है, जेन क्या खा रहा है, सॉरी जेन होगा पहला, isn't it? पहला ट्रांसलेशन होगा, हिंदी का सेंटेंस शुरू होगा जेन से। जेन क्या खा, इसका हो गया रहा है, मतलब, ठीक है। जब हम लोग ट्रांसलेट करें तो जंबल हो जा रहा है, देखो, इसलिए लिटिल ट्रांसलेशन नहीं चलता है, राइट। सो व्हाट इज जेन ईटिंग? जेन क्या खा रहा है, राइट। आई थिंक आपको समझ में आ गया ना? विल मूव अहेड, क्लियर, ओके। नाउ Sam drank some milk. So some milk is object of verb, और कह लो ऑब्जेक्ट है ये। हम लोग पहले वाले सेशन में, फर्स्ट सेशन में हमने सीखा था कि सब्जेक्ट के दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। प्रेडिकेट इज वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट,
So object is always verb of object. वर्ब के बाद ही लगता है वो. राइट. क्वेश्चन में क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, फिर वर्ब आता है. जब हम लोग व्हाट यूज कर रहे हैं, व्हाट का मतलब हमको मालूम करना है कि वो क्या खा रहा था, तो ऑब्जेक्ट पहले आ रहा है. व्हाट डिड सैम ड्रिंक. अब ये दो वर्ब में कंफ्यूज मत हो आप. यहाँ पे जो ये जो वर्ब बन रहा है, ओके, ये ऑब्जेक्ट वाला वर्ब, ये समझो इसको, ठीक है. इसमें कंफ्यूज मत हो आप, ये वाले वर्ब में कंफ्यूज हो मत हो. अपना मेन वर्ब क्या है, डिड. मेन वर्ब मतलब जो कोर वर्ब है क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए, वो डिड है. ये वाला वर्ब ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करता है, राइट. तो आंसर क्या हुआ, सैम को हम पहले ले लेंगे, ड्रिंक उसके बाद में है. सैम ड्रैंक पास्ट में है, डिड का कन्वर्ट हो जाएगा तो ये पास्ट हो जाएगा. सैम ड्रैंक क्या, सम मिल्क. व्हाट को कन्वर्ट करते सम मिल्क बन गया, ठीक है. सो नाउ लेट्स प्रैक्टिस. क्वेश्चन आंसर है दे सॉ अ मूवी. ओके, दे सॉ अ मूवी. तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, दे सब्जेक्ट हुआ. वर्ब क्या हुआ, सॉ हुआ. ऑब्जेक्ट अ मूवी हो गया. ये पार्ट जो है वो ऑब्जेक्ट बन गया. तो अभी क्वेश्चन क्या होगा इसका, डिड दे, हेलो, वेरी गुड. डिड दे, हेलो, डिड दे सी वेरी did they गुड, see a movie? वेरी गुड. डिड दे सी अ मूवी और व्हाट डिड दे सी. हम लोग क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी, व्हाट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. और आंसर क्या आ रहा है, वो दे सॉ अ मूवी. तो आपको पता नहीं था उन्होंने क्या देखा है, तब उस संदर्भ में हम क्या पूछेंगे, व्हाट डिड दे सी. ठीक है जी जी. ऑलराइट. सेम वे वी आर प्रैक्टिसिंग व्हाट, तभी आंसर पे फोकस करो. I got a computer for my birthday. So what should be the question? इसमें सब्जेक्ट क्या है पहले बता दो मेरे को. आई है सर. आई है. वर्ब क्या है, got verb है. Rest whatever is there, that is object, isn't it? Now form a question. व्हाट, मैं उसको अभी यू से करूंगा ना सर, ऐसा करूँ ना, या आई से करूँ, यू से करूँ ना. ये हाँ, आप ये लड़की की जगह पे आप बैठे हो, ठीक है, ये लड़की की जगह पे आप बैठे हो, तो आपको कोई दूसरा पूछेगा तब जाके आप बोलोगे ना आई गॉट अ कंप्यूटर. जी. हाँ, तो क्या होना चाहिए, आप जो सोच रहे हो सही सोच रहे हो. ओके. बना दो वही क्वेश्चन. व्हाट यू गेट ए कंप्यूटर. Did you हेलो. get व्हाट डिड यू गेट ए कंप्यूटर फॉर. सही है, क्योंकि जब हम लोग हम जब यूज करेंगे डिड यू गेट अ कंप्यूटर फॉर, डिड यू गेट अ योर कंप्यूटर, बर्थडे. तब अपने को पता है कि उसने कंप्यूटर खरीदा है, उसको डबल कंफर्म करने के लिए डिड बोलेंगे. जब पता नहीं है क्या खरीदा तो क्या होगा क्वेश्चन, व्हाट. कंप्लीट करो. अच्छा. देखो हमने पहले वाले स्लाइड में ये देखा था ना. देखो जब हम लोग डिड यूज करते हैं तो अपने को पता है ऑब्जेक्ट क्या है, पता है अपने को, तो उसको डबल कंफर्म करने के लिए हम लोग डिड यूज करते हैं. जब पता नहीं ऑब्जेक्ट क्या है, ओके ओके ओके. तो व्हाट यूज करते हैं. तो हम लोग अभी क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, व्हाट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, इजंट इट. यहाँ पे भी यही हुआ था ना, मैंने क्या बोला था कि या व्हाट डिड दे सी. सेम वे क्या होना चाहिए यहाँ पे, व्हाट डिड यू गेट इन योर बर्थडे. रिपीट करो, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा था. व्हाट डिड यू
get, what did you get in your birthday? मैं यही बोलता हूँ क्यों आप यहाँ पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो? यहाँ पे इन यूज किया है या फॉर यूज किया गया है? Force. बस तो है ना, इसमें ही आंसर में ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ही आंसर है, ठीक है? वैसे यूज करना है। सो व्हाट डिड यू गेट फॉर योर बर्थडे, दैट शुड बी दी। चलो हम लोग थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये आंसर नहीं है, ओके? ये पूरा आंसर नहीं है, ये पूरा आंसर नहीं है, इसको भूल जाओ आप, आंसर नहीं है। कोई क्वेश्चन पूछ रहा है आपको, व्हाट डिड यू गेट फॉर योर बर्थडे, तो ध्यान दो ऑब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हुआ? यू सब्जेक्ट हुआ, You subject. डिड हुआ, डिड की जगह पे हमको सर हमेशा वो पिक्चर में वो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है अभी, फील करने में भी कैसा इसको क्या वो, वैसा अगर सिंपल आप विदाउट पिक्चर क्वेश्चन करोगे ना तो वो भी इजी रहेगा। मैं एक्स्ट्रा ऐड क्या कर रहा हूँ, अगर अपने को ये पिक्चर नहीं है, आंसर नहीं है, कुछ नहीं, शॉर्ट आंसर भूल जाओ, लॉन्ग आंसर भूल जाओ, खाली क्वेश्चन ही पूछ रहा है कोई आपको, व्हाट जी योर बर्थडे, तो आपको ये ध्यान देना है, यहाँ पे सब्जेक्ट तो यू हो गया, वर्ब डिड हो गया, तो डिड को हमको यूज नहीं करना है पॉजिटिव सेंटेंस में, क्योंकि डिड अगर हम यूज करते हैं तो नेगेटिव ही यूज करते हैं, डिड नॉट ही करते हैं, डिडंट ही करते हैं। डिड के जगह पे हमको ऑब्जेक्ट वाला वर्ब यूज करना है, और ये कन्वर्ट हो जाएगा गॉट में, ठीक है? अब वो तो सही है जी, वो तो सही है। आई गॉट अ कंप्यूटर इन फॉर माय बर्थडे। नहीं आप कंप्यूटर मत बोलो ना, प्रैक्टिकली बोलते आपने क्या लेके आया था, मैं ये प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपको। यू डोंट फोकस ऑन कंप्यूटर, यू डोंट फोकस ऑन दिस लेडी। ओके अगर प्रैक्टिकली कोई ओके आपको पूछ रहा है ये क्वेश्चन, व्हाट डिड यू गेट फॉर योर बर्थडे, तो आपको ध्यान ये रखना है कि सब्जेक्ट ये है, डिड ये है, तो ये गॉट हो जाएगा। फॉर योर बर्थडे इज ऑब्जेक्ट, इसको चेंज नहीं करना है आपको आंसर में, मैं आपको लाइफ सिंपल कर रहा हूँ। जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो ऑब्जेक्ट क्वेश्चन में लगा हुआ है वही ऑब्जेक्ट आप आंसर में भी यूज करो। तो ओके आंसर ये होना चाहिए, यू का कन्वर्ट हो जाएगा आंसर में आई, गेट कन्वर्ट हो जाएगा गॉट, है ना? जी सर जी। फॉर योर बर्थडे भी सेम रहेगा, आपको भरना क्या है यहाँ पे, खाली व्हाट भरना है, समझ में आया? आपको जी खाली जी व्हाट भरना है। यू का कन्वर्ट हो गया आई, गेट का कन्वर्ट हो गया डिड का पास्ट गॉट, फॉर योर बर्थडे कॉमन है, ऑब्जेक्ट कॉमन है, आपको चेंज नहीं करना है ऑब्जेक्ट। तो 70% ऑफ द आंसर इज इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। कहने का मतलब ये है, मैं समझा ये रहा हूं आपको, जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है, आपका कस्टमर पूछ रहा है, आपका बॉस पूछ रहा है, या मैं पूछ रहा हूँ, जब क्वेश्चन पे ध्यान दोगे तो क्वेश्चन का ऑब्जेक्ट जो है वही ऑब्जेक्ट मेरे को आंसर में यूज करना है। 70% ऑफ द आंसर इज देयर इन द क्वेश्चन ओनली, 30 या ओके 20% ही हमको लगाना है बस, यहाँ पे खाली व्हाट को लगाना है यहाँ पे। तो अब मेरे को आंसर दो आपने, व्हाट डिड यू गेट फॉर योर बर्थडे, कंप्यूटर मत बोलो, मुझे प्रैक्टिकली बोलो। आई डिड नॉट गेट एनी। वेरी गुड, आई डिडंट नहीं बोलना है, मैंने कल सिखाया था ना, डिड नहीं करना है, डिडंट, आई डिडंट गेट, कंप्लीट, एनीथिंग एनीथिंग फॉर माय बर्थडे। फॉर माई बर्थडे, सो यूर बन जाएगा माई यहाँ पे, आई डिडंट गेट एनीथिंग फॉर माई बर्थडे, क्लियर? तो क्लियर। ध्यान दो, whatever is the question, whatever is the object in the question, that only we should use. Chalo, now we will make it fast. So what should be the question? They like to fish, मतलब मच्छी पकड़ना। नहीं पसंद करते हैं ना सर, सही। हाँ, लाइक मतलब पसंद ना। हाँ सब्जेक्ट क्या हुआ यहाँ पे? दे दे। वर्ब क्या हुआ? लाइक। लाइक। टू फिश इज ऑब्जेक्ट। अभी हमको करना क्या है? ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब करना है, रिवर्स करना है। तो क्या लगेगा इसमें? व्हाट
they, what did they like to fish? देखो यहाँ पे like जो है प्रेजेंट है या पास्ट है? प्रेजेंट है। तो क्वेश्चन भी प्रेजेंट में होना चाहिए, ये ध्यान रखो। ओके, they like to fish. ओके, does देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या होगा? व्हाट होगा ना, हम लोग व्हाट प्रैक्टिस कर रहे what हैं। what does they like to fish? ओके, व्हाट डज They like to fish. देखो भाई, व्हाट डज, दे डज के साथ आएगा क्या? कैन वी से दे डज? दे डज नॉट कह सकते हैं हम लोग, या दे डू नॉट कहते हैं? Do not do. डज कैसे लगेगा? सो व्हाट के बाद में सब्जेक्ट आना चाहिए ना, व्हाट डज क्यों जी, लगा रहे हो? ध्यान रखो, व्हाट ऑब्जेक्ट हुआ, व्हाट के बाद क्या आना चाहिए? डज आना चाहिए या सब्जेक्ट आना चाहिए? subject. तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? They. राइट, सो व्हाट दे, व्हाट दे हो गया। कंप्लीट करो सेंटेंस को, मैं मदद कर रहा हूं आपका। Like to fish. व्हाट दे What they लाइक, like. व्हाट वर्ब की जगह पे हो गया लाइक। ओके, व्हाट दे लाइक, व्हाट डू दे लाइक अगर आप करते हो तो सही सेंटेंस बनता है। ठीक है, Yes. व्हाट डू दे लाइक इज द क्वेश्चन। चलो फिर से कर लेते हैं एक बार। व्हाट डू दे लाइक टू डू? दे लाइक टू फिश। क्वेश्चन पूछा, आंसर आ गया, पर अपने को क्या था? क्वेश्चन नहीं था। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? सी क्वेश्चन ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ वर्ब। मैंने जो लिखा था वो भी गलत था। वो मैंने क्या लिखा था? ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। नो, गलत है वो। क्वेश्चन ऑलवेज स्टार्ट्स विद वर्ब, ये तो याद होगा आपको। जी जी बिल्कुल। वर्ब से पहले क्या लगता है? क्वेश्चन वर्ड लगता है। सब्जेक्ट क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड लगता है। यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड ऑब्जेक्ट है। मतलब क्वेश्चन वर्ड क्या है हमको पता करना है, क्या है ऑब्जेक्ट, क्या है? टू फिश। तो टू फिश क्या हुआ? व्हाट। तो क्वेश्चन वर्ड वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस whatever जो भी रिमेनिंग है। सो व्हाट डू दे लाइक टू डू? ओके, ओके। एक बार फिर से I got a computer for my birthday. So question always starts with verb, subject, question word, verb, subject. What did you get for your birthday? Right? इसका हम लोग अगर ब्रेकअप करें तो क्या होगा? Question word, verb, subject, get वर्ब। actually object है, but here it is object होगा यहाँ पे। ओके, गेट वर्ब है ना सर? गेट वर्ब है, ये दोनों वर्ब ही है। For your birthday is the object. तो क्या होता है when we use did form, verb डबल हो जा रहा है।
ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन में देख लेते हैं। देखो यहाँ पे भी डिड वर्ब हुआ, सी बी वर्ब हुआ, सी वर्ब। पर आंसर में क्या हो रहा है, खाली एक ही वर्ब आ रहा है। क्वेश्चन में वर्ब क्या होता है, डबल हो जाता है। ठीक है, ठीक सर। इसमें देख लो आप, इसमें यस, इज जेन ईटिंग एन एप्पल, शी इज ईटिंग एन एप्पल, तो शी सब्जेक्ट हुआ, शी का हो गया जेन, तो वर्ब प्लस, सो ये ईटिंग एन एप्पल जो है, ईटिंग ऑल्दो इट इज वर्ब, इट इज पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, शी सब्जेक्ट हुआ, इज वर्ब हुआ, ईटिंग एन एप्पल ऑब्जेक्ट हुआ। ईटिंग जो है क्या है, ऑल्दो इट इज वर्ब, इट इज पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट। उसी तरह तरीके से उसी मायने में यहां पर भी सैम ड्रैंक सम मिल्क, तो इसमें डबल वर्ब नहीं हो रहा है तो छोड़ो उसको। इस वाले एग्जांपल में दे सॉ अ मूवी, so they saw is the verb in the answer, but in question क्या हो रहा है, verb is getting double। saw मतलब क्या किया, did चाहिए अपने को वहां पे। okay, what did they see? okay, let's try to get into some more questions, we'll see, अगर कुछ डाउट आ रहा तो फिर देखेंगे। okay, who did you see? okay, who did you see नहीं है, what did you see होना चाहिए। just give me a second, question with who। okay, who did you see, what did you see, a bird, who did she see, Oscar। okay, so what when we use it for a thing, who when we use it is for a person। ठीक है, रूल क्लियर है। जब हम लोग what यूज करते हैं क्वेश्चन में, तो we want to know a thing can be plant animal, but apart from any human being it can be what। who जब यूज करेंगे तो वो एक ह्यूमन बीइंग ही होना चाहिए, एक इंसान ही होना चाहिए। it should be people or it should be person, right? who did she see, Oscar। long answer, she saw Oscar। Oscar नाम हुआ आदमी का। whom did she see, Oscar। she saw Oscar। so whom and who दोनों का सेम मीनिंग आता है। ठीक है, दो तरीके से पूछ सकते हैं, whom did she see और who did she see, दोनों का मतलब सेम आएगा। बट what did she see नहीं कह सकते। अगर ऑस्कर आंसर है, अगर हम इंसान के बारे में पूछ रहे तो व्हाट डिड शी सी नहीं कह सकते, whom यूज कर सकते हैं या who यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ whom इज फॉर्मल इंग्लिश, who इज एवरीडे इंग्लिश। मतलब एवरीडे इंग्लिश जो हो गया कैजुअल लैंग्वेज हो गया, फॉर्मल जो हो गया वो बिजनेस हो गया, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू whom। so what should we use, we should not use general English, we should use professional English, hence whom did you see। और okay, so all right, I think it is just an extension, whom did she see, Oscar। okay, who came, zo zo came, कौन आया, जो आया। जो। who did that, Pedro did that। किसने किया, पेड्रो ने किया। who knows her, लिया knows her, right? so who में क्या हो रहा है, the answer is coming as person,
Zo, Pedro, Lia. ऑब्जेक्ट तो सेम ही रहेगा हमेशा, सब्जेक्ट की जगह पे हु लगेगा. ओके, राइट. right. Marilia emailed Ab. Ab read the message. Ab called Marilia. ओके, ये एक कॉन्वर्जेशन है, एक सिचुएशन है. Marilia emailed Ab. फिर क्या हुआ? Ab read the message. फिर क्या हुआ? Ab called Marilia. Who emailed Ab? आंसर क्या? Marilla mailed to Ab. या Marilia emailed Ab. Emailed. मैंने क्या कहा था? जो क्वेश्चन में उसी तरीके से आंसर करना. वी नीड नॉट टू ऐड एक्स्ट्रा. शॉर्ट आंसर होगा Marilia, लॉन्ग आंसर होगा Marilia emailed Ab. सिंपल. Who read the email? Ab read the email. लॉन्ग आंसर Ab read the email. शॉर्ट आंसर Ab. ये जो शॉर्ट आंसर्स होते हैं हम लोग खाली स्पोकन इंग्लिश में यूज करते हैं, बट इफ इन रिटन इंग्लिश इट इज व्हेन वी आर रिप्लाइंग. बिजनेस इंग्लिश में होता है क्या? वी कम्युनिकेट अ लॉट थ्रू ईमेल्स, तो वहां पे हमको लॉन्ग आंसर यूज करना पड़ता है. हु कॉल Marilia? Ab called Marilla. Marilla, actually Marilla. हाँ, Marilla, not Marilia. Marilla. Okay, who called Marilla? Ab. Ab called Marilla. Marilla. खाली ये हु के जगह पे अगर हम लोग ये नेम लगा दें वहां पे तो लॉन्ग आंसर बन जाएगा. राइट. जी. Jalal bought a new car. His daughter Amin borrowed it. His daughter का नाम क्या है? Amin. His daughter, Amin, borrowed it. She took Jane for a ride. So यहाँ पे she कौन है? ये इसकी डॉटर. नाम क्या है? Amin. Very good. Jane third person आ गया. Jalal bought a new car. His daughter Amin borrowed it. She took Jane for a ride. Now try to answer. Who bought a new car? Jalal bought a new. Very good. Jalal bought a new car. Who borrowed it? His daughter. आप his daughter कह सकते हो. Amin. Bought. ठीक रहेगा, दोनों भी सही रहेगा. His daughter और Amin. Amin ही होना चाहिए क्योंकि third person is asking, तो अपने को पता नहीं कौन है. Right? So Amin or Jalal's daughter or his daughter. Who went for a ride with Amin? Jenny went for a ride with Amin. Very good. Great. So now we understand who means name of someone. Whom we can use, but what we cannot use. What is only for things, not for person. Right? Yes. Now let's talk about how much. How much did your car cost? Okay, so यहाँ पे verb क्या use कर रहे हैं हम लोग? We are trying to learn some irregular verbs now. कल हमने 5 ग्रुप, अभी तक हमने 5 ग्रुप ऑफ वर्ड्स कवर करे हैं. सर ये बैक स्लाइड करना सर, एक मिनट पीछे वाला स्लाइड सर. ये बस ये कार देखना है. यहाँ पे हाउ मेनी नहीं आना चाहिए था. हाउ मेनी डिड यू. Many is for things, much is for quantity. यहाँ पे कॉस्ट है ना. many क्या होगा? many होगा क्वांटिटी के लिए.
नंबर नहीं पूछने सर, का। अब पैसा तो काउंटिंग वाला ही है ना सर वैसा। हाउ मेनी रुपीज डिड यू पे फॉर हर? मच भी क्वांटिटी है, मेनी भी क्वांटिटी है, पर हमको समझना ये है, मेनी जब हम कह रहे हैं तो वी, ये क्या बोलते हैं, इट इज फॉर पीपल, इट इज फॉर थिंग्स, मेनी इज फॉर थिंग्स वेयर वी कैन, थिंग्स वेयर वी कैन काउंट। एप्पल्स हो गया, बॉय हो गया, गर्ल्स हो गया, क्या भी कह सकते हैं, हाउ मेनी, हाउ मच बॉयज केम विथ यू, नहीं। नहीं कह मच जो सकते। होता है वो मेजरमेंट के लिए होता है, ऑल्दो इट इज क्वांटिटी बट इट इज मेजरमेंट। पैसे पानी को, हो गया, दूध हो गया, हाँ, जूस हो गया। पैसे को हम लोग, when we talk about cost, it is काउंटिंग के नीचे आता है, बट डोंट टेक इट लिटरली। सिक्के तो गिनते नहीं ना हम लोग, गिनने के बाद में एक मेजरमेंट हुआ ना, वो एक यूनिट हुआ वो। तो ये पकड़ के चलो कि पैसे के साथ में हम लोग मेनी यूज नहीं कर सकते, ठीक है। आई नो मेरा एक्सप्लेनेशन इतना क्लियर नहीं है, बट आपको समझना चाहिए प्रैक्टिकली हम लोग। नहीं, मैं ऐसा सोच रहा था, अगर हम ऐसे बोले हाउ मेनी रुपीज डिड यू पे फॉर योर कार? कह सकते हैं हाउ मेनी रुपीज, क्योंकि रुपीज को गिनते हैं हम लोग। हाउ मेनी रुपीज डिड यू गिव टू हिम, क्योंकि रुपीज को हम लोग गिनते हैं। यहाँ पे कॉस्ट बता रहे हैं हम लोग, कॉस्ट को तो नहीं गिनते ना, जी जी। राइट। कॉस्ट इज नॉट अ नाउन विच वी कैन काउंट। सो बेसिक, हाँ ऐसे कह लो, मैनी इज फॉर नाउन्स, cost is not a noun here, cost is an adjective। ओके सर। Anyways, we are trying to learn the verbs। cost का past cost ही होता है, costed नहीं होता, ये हम लोग कॉमन मिस्टेक करते हैं। ओके, how much does it cost, how many does it cost नहीं कह सकते, how much did it cost last year। so does it cost present, did cost past। so how much does it cost मतलब क्या है, अगर किसी चीज को खरीदना है तो उसका दाम क्या है। कभी भी खरीदो आप, आज खरीदो, परसों खरीदो, या 2 साल के बाद खरीदो, तब हम लोग डज यूज करेंगे। ओके, समथिंग विच इज अ फैक्ट, समथिंग विच रेगुलरली हैपेंस। सो हाउ मच डज इट कॉस्ट। पर अगर हम कहेंगे हाउ मच डिड इट कॉस्ट लास्ट ईयर, तो ये पास में चले गए। पिछले साल क्या खरीदी थी इसकी और क्या कॉस्ट थी इसकी। सेम वे फॉरगेट, फॉरगेट का पास्ट होगा forgot, forgetted नहीं होगा forgot। so did I forget your birthday, I forgot your birthday last year। okay, give का past given नहीं होगा, gave होगा। let me know if I'm going fast and you want to make notes। ये सब common words है, तो I'm just going little fast for you। she gives me very nice gifts। so why do we use s, because it is singular। जब कभी भी सिंगल। सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाता है तो वी हैव टू ऐड एस विथ वर्ब। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस। या Yesterday she gave me a CD। ये भी ऑलरेडी अब हमने कवर कर लिया है। कट, कट, हिट, हिटेड नहीं होगा, हिट होगा। हर्ट, हर्टेड नहीं होगा, हर्ट होगा। लेंड का लेंथ होगा। मेक का मेड है। शट का शट है, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड शट। स्पेंड का स्पेंडेड नहीं होगा, स्पेंट होगा। अगर आपको लगता है कोई भी वर्ब्स जिनको आप ईडी यूज करते थे उसका नोट कर लो आप, नहीं तो हम लोग स्किप करेंगे स्लाइड को। राइट, अंडरस्टैंड का अंडरस्टैंडेड नहीं होगा, अंडरस्टूड होगा फास्ट। ठीक है, शैल आई मूव अहेड। यस। ओके, सो डिड यू शट द oven डोर। आंसर क्या होगा? यस यस बोल रहा है तो क्या होगा, क्या वर्ब लगेगा? आई शट।
Yes, I shut the oven door. See, यहाँ पे दी क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि अवन वाल साउंड है. अगर अवन के जगह पे कॉन्सनेंट होता है, कोई कॉन्सनेंट वर्ड होता तो द बोलते. ये याद होगा ना? दी इज यूज्ड हाँ इन जी, हाँ फ्रंट ऑफ जी, वाल and the is used in front of consonant. Yes, I जी. shut the oven door. Very good. Shutted नहीं होगा, shut होगा. Very good. Did you make that cake for me? क्या होना चाहिए Yes, I आंसर? made it. Yes, I made it for your birthday. Yes, I made it for your birthday. Okay. Sometimes I spend too much money. Too many नहीं बोलना है यहाँ पे. Money यहाँ पे count नहीं हो रहा है यहाँ पे. Right? Money is quantity but not Yes, counted. I Sometimes know. I know last week you You spent. very good spent, tip of your tongue, spent $200 or okay. Now some more regular verbs. The wind blew very hard yesterday. ये वर्ड हमने कल कवर किया था. इसका प्रेजेंट क्या होगा बताओ मेरे को. ब्लू का प्रेजेंट क्या होगा? We are not talking about adjective blue. Almost pronunciation same है, but इसका प्रेजेंट क्या होगा? मैं खाली इस वर्ड का प्रेजेंट पूछ रहा हूं मैं. आई एम नॉट आस्किंग द एंटायर सेंटेंस. इसका सेम ही होगा सर. नहीं, इसका हमने कल देखा था ना. ब्लो, past tense of blow is blew. कल आपने नोट नहीं किया मेरे ख्याल से. वी हैव कवर्ड दिस यस्टरडे. आई रिमेंबर वेरी वेल. ब्लो का पास्ट होता है ब्लू. ब्लो का सेकंड फॉर्म ऑफ प्रेजेंट होगा ब्लोज. सो द विंड ब्लोज very hard in Yes. our town or in our island. ऐसे होना चाहिए था. Anyways, so blow का past होगा blue. Okay. Sometimes the wind blows hard. Last week it blew very hard. Okay. समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल. So present tense जब हम यूज करते हैं तो it is a habitual thing, a regular thing which happens. कब कब होता है? फ्रीक्वेंसी में डिफर. हमने फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्ब भी सीखा है. ऑलवेज, समटाइम्स, सेल्डम, नेवर, यूजुअली. ओके. ग्रो का ग्रोड नहीं होगा, ग्रू होगा. ये तो आपका it is connected to your business, so you know this. He grows tomatoes in his garden. He grew many tomatoes. देखो यहाँ पे many क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि tomatoes को गिन सकते हैं हम लोग यहाँ पे. It's a noun. He grew much tomatoes नहीं बोलना है यहाँ पे. He grew many tomatoes last year. Swim का swims नहीं होगा, swam होगा. We swim in the ocean in the summer. We swam in the ocean last summer. Right? So swim का swim नहीं होगा, swam होगा. Okay. Same way. Draw का drew, drawed नहीं होगा, drew. Fall, fell, feel, felt, keep, kept, know, knew, throw, threw. Threw. Throwed नहीं होगा. Win, wind नहीं होगा, won होगा. देखो ये सब क्यों लगता है? क्योंकि यहाँ पे देखो ये सब खाली प्रोनाउंसिएशन कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करने के लिए इनका ऐसा है. ओके. यहाँ पे एक एग्जांपल दे देता हूं मैं. अगर हम लोग WINED अगर करते हैं विंड, तो उसका मीनिंग क्या हो जा रहा है? उसका मतलब अगर ईडी लगाते हैं तो क्या हो जाएगा? इंग्लिश में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन
one, नाउन के साथ मिक्स हो very जाएगा। तो अपने को पता नहीं आप वर्ब बोल रहे हो या नाउन बोल रहे हो। इसीलिए इंग्लिश में क्या जी हुआ जी है, विंड को विन का पास वन कर दिया। ठीक है, जी जी अगर आप 1000 साल पहले जाओ, जो आदि मानव का जमाना था, दौर था, तब तो इंग्लिश जी, नहीं थी ना, तब तो खाली आवाजें निकालते थे, आऊ हाँ जी, कुछ ऐसे कम्युनिकेट करते थे। जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, जैसे जैसे तरक्की हुई, जैसे जैसे आदमी बढ़ा, भाषा भी बनी, तो इन्होंने ये समझा कि अरे हाँ, विन के साथ अगर हम ईडी लगाए तो विंड कंफ्यूजन हो रहा, तो क्या करें, चलो विन का हम लोग कर देते वन। तो ऐसे ही एवरी लैंग्वेज इज रिवॉल्व। अनफॉर्चुनेटली इंग्लिश में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, दूसरे भाषाओं की तुलना में इंग्लिश में कंफ्यूजन ज्यादा है, इसलिए इतने सारे रूल्स है। ठीक है, दैट इज वन ऑफ द जी सर, एक्सप्लेनेशन। इसलिए एन आता है, इसलिए द दी आता है, इसलिए आई के साथ इज नहीं आता है, एम आता है। समझ में आया? अगर हम लोग बोले आई इज, आई सिंगुलर है, आई के साथ इज लगाना चाहिए। आईज बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, आई सी ई आईज हो जाएगा वो। राइट, ऑल दीज आर दी right, logical explanation why English grammar has got so many rules. That is why English is little complicated. ठीक है, right, चलो फिर आज 1 घंटा हो गया, ओके सर, we'll stop here. स्नेहलता भी नहीं है, ये खत्म कर दें क्या एक बार? ये कल कर चलो लेंगे रिवाइज, उसके लिए भी रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, चलो टुमारो विल फिनिश ऑफ 9th चैप्टर। ओके ठीक है, और कुछ पूछना है विपिन? हाउ आर थिंग्स गोइंग ऑन? सर। एक्चुअली कल वो मैंने एक किया था, आई ईट ऑल द डिनर अपार्ट फ्रॉम पीस, आई ईट ईट ऑल द डिनर, ऑल द डिशेस अपार्ट फ्रॉम पीस, मटर को छोड़ के बाकी सब खाया। आई एट all the dinner, या all the oh, आई I एट ate all dishes, I ate everything except peas, peas। or सर वो apart from peas, comma, I ate everything. तो ये दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। कोई भी यूज करे, इंग्लिश है ये लैंग्वेज ऐसा, एक चीज को ना दो बिसाइड बिसाइड एक बिसाइड भी कर सकते हैं। हाँ, besides beside peas, comma, I ate everything, ये भी बोल सकते हैं। 3 तरीके। बड़ा पंगा है सर। पंगा नहीं है, इंग्लिश कंफर्टेबल, अगर आप पॉजिटिवली लो जिंदगी को अपने लाइफ में, तो इंग्लिश बेसिकली कंफर्टेबल लैंग्वेज है। आप 10 सेंटेंस में से सर कोई भी एक चीज बोलने के लिए तीन चीज, एक ही बात बोलने के लिए अभी तीन तीन ऑप्शंस हो रही है सर, वो ऑप्शन बड़ा। अभी कल ऑप्शन है ना, आपको एक ही चीज खरीदने के लिए नहीं बोल रहा है वो। आप सर, आप एक अभी दुकान में अभी कल कल मैंने एक कुछ पढ़ा था उसमें, जैसे इवन दो आई गॉट एक्सीडेंट बट आई डिडंट इंजरीज, I didn't get injuries. आई Even डिडंट। though I met with an accident, I didn't get any injuries. ये होना चाहिए सेंटेंस। ऐसा कुछ था, मैं अभी शायद बोल गया। वही बोल दिया ना, मैं ग्रामेटिकली मैं करेक्ट कर रहा हूँ। इवन दो आई मेट विद एन एक्सीडेंट, आई डिडंट गेट एनी इंजरीज, ये होना चाहिए। एनीवेज, इंग्लिश अगर आप इसको पॉजिटिव लो तो वी हैव चॉइसेस। उस चॉइसेस में 10 चॉइस में से या 3 चॉइस में से कोई भी एक बोल लो, चलेगा, गलत नहीं है। नेगेटिव लेते हो तो कंफ्यूजन हो जाएगा, अरे इतने सारे नहीं। आप पॉजिटिवली लो ना, लाइफ को अगर हम पॉजिटिवली लेते हैं तो ही लाइफ अच्छा दिखता है अपने को। सो वी हैव वो तो चॉइसेस। है, एक चीज के लिए तीन चार ऑप्शन थे ना, इसलिए थोड़ा सा वो। अगर कोई बोलता है आपको कि इसी एक कोई शादी करना है और आपको पसंद नहीं है, तो मुश्किल हो जाता है ना। वही 4-5 ऑप्शन देते हैं आपको, बोले हाँ ये मेरे को बेस्ट लग रहा है, इन चारों में से ये बेस्ट है मेरे लिए, हाँ, मैं हाँ, कंफर्टेबल सिचुएशन जी है ना। सिमिलरली जी इंग्लिश में भी काफी सारे सेंटेंसेस, काफी एक्सप्रेशंस है। एक ही बात को बोलने के लिए हम लोग 4-5 सेंटेंस में यू बोल सकते हैं। जो आपको कंफर्टेबल है आप वो यूज करो, कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि वो यूज करना है। हाँ, शर्त ये है, और शर्त नहीं है, बात ये है कि वो पांचों सेंटेंसेस को समझने की क्षमता आप में होनी चाहिए, क्योंकि कोई दूसरा वाला का प्रेफरेंस कुछ और हो सकता है, आपका प्रेफरेंस ये है,
आपका फर्स्ट सेंटेंस फिर प्रेफरेंसेस। मैंने वो एक मेरा फ्रेंड है उनसे बात करी मैंने, उसने वो आइल्स किया हुआ क्लियर है। हाँ हाँ। तो मैंने कहा ऐसा कैसे है, मतलब एक एक चीज को 4 4, वो बोले कि हमारा जो आइल्स का रहता है ना उसमें एक चीज को हम रिपीट नहीं कर सकते बार बार, मतलब वो तो जैसे क्वेश्चन है इवन दो ना। लगा दिया तो नेक्स्ट टाइम। हाँ हाँ, वो क्वेश्चन है तो दो लगा के चलते हैं, आईएलटीएस। हाँ फिर हाउ आईएलटीएस। एवर लगाते हैं, ऐसा कुछ चलता है तो वो अपना कंफर्टेबल लैंग्वेज यूज करते हैं, राइटिंग में हो जाता है वो क्या। जी। आईएल्स इज ऑल्ट सी आईएल्स क्या होता है, वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, आप उसको एक स्ट्रैटेजी बना के चलोगे। हम लोग अभी आईएल्स नहीं कर रहे हैं ना, हम लोग तो नहीं अपना। नहीं, मैंने जस्ट एक पूछा था, मैंने कहा यार ये क्या लफड़ा है, एक एक चीज को 6 6 बार आ रही है। तो बोला ये एक वजह है भी, इस तरह से हम तो उसमें यूज करते हैं, तो एक ही चीज को हम रिपीट नहीं कर सकते, नहीं तो हमारे नंबर कटते हैं, ऐसा कुछ रहता है। अच्छा वो बता रहा था, वो राइटिंग में, वो राइटिंग में वो बता रहा था वोकैबुलरी के बारे में। वो आपको बताना हाँ जी चाहिए हाँ। कि अब मैं कंफर्टेबल हूँ, एक ही चीज पे अटके नहीं रहना है आपको। आपको बताना है कि आई हम्म, कैन यूज इंग्लिश वेरी कंफर्टेबली। तो आई वही बोल रहा हूँ ना, जी आईएलटीएस इज बेसिकली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो उसका स्ट्रैटेजी अलग है, स्कोर करना है ना उसमें, उसमें दिखाना है कि मैं हाँ इंग्लिश स्कोर। ज्यादा जानता हूँ। तो इसलिए वहां जी पे वो एक चीज पे अटक नहीं सकते, उनको वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस यूज करने, वैरायटीज ऑफ वर्ड्स यूज कर रहे हैं। तो वो बता रहा था वो राइट। आपको। चलो चलो फिर, आई एज आई सेड, keep this in your mind, anything which is repeated for 21 days। तो आपको नोट्स रिपीट कर रहे हो आप? मैं तो कर खाली रहे हैं बोल सर। चेक नहीं कर रहा हूँ। हर रोज पढ़ रहे हो अभी पहले पहले से? बहुत ज्यादा तो नहीं इन दोनों सर मैं कर सका, लेकिन जब भी टाइम लगता है मैं करता हूँ सर थोड़ा बहुत। जब भी टाइम मिलता है करते हो, वो अच्छी बात है। उसके अलावा एक फिक्स टाइम लगाना बहुत जरूरी है। अगर आप सोचोगे जी कि सर। मेरे फ्री टाइम में मैं करूंगा, तो कभी फ्री टाइम नहीं आएगा। ये बात गांठ बांध हाँ के वो चलो तो। मेरे साथ। अगर आप बोलोगे मैं फ्री टाइम में करूंगा, देखूंगा, देखेंगे यार, शाम में देखेंगे, नहीं होता कभी भी। शाम में 7 बजे मैं कैसे भी बैठूंगा, तभी होता है, राइट। जी सो सर। राइट। एलोकेटिंग फिक्स्ड टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज ये माइंड में रखो आप। मैं तो यही बोलता हूँ, 6:30 बजे का क्लास है, 5:30 बजे उठ के पढ़ने पलटो। फिक्स टाइम बनाओ उसको। जी जी उसके अलावा पूरा दिन पड़ा है आपको, वो बोनस हो गया। बोनस अपने को नहीं चाहिए, अपने को मेन प्रिंसिपल चाहिए। प्रिंसिपल अमाउंट ना मेन है, ठीक है। ठीक। और सुनो, डिड यू लिसन एनीथिंग इन इंग्लिश यस्टरडे? लिटिल बिट आई सो ए वीडियो। मैं कल करता हूँ ये काम। आई वांट टू डू दिस एक्टिविटी टुमारो। मैं आपके साथ और स्नेहलता के साथ मैं बैठूंगा, मैं व्हाट्सएप में भेजता हूँ आपको करना क्या है। टुमारो आई नीड टू नो फिक्स्ड टाइम फॉर लिसनिंग, फिक्स्ड टाइम फॉर रीडिंग, फिक्स्ड टाइम फॉर रिवाइजिंग। मैं अब जब तक आप लोगों से कमिटमेंट नहीं लो ना फिक्स टाइम का, तो आप लोग करोगे नहीं, ठीक है। ये मेरी गलती है, आपकी गलती नहीं है। आई थिंक आई हैव लर्न समथिंग टुडे, ये मैं जानता हूँ। इम्प्लीमेंट नहीं किया मैंने, पर एटलीस्ट देर से आए दुरुस्त आए। So tomorrow I want to know what is the time you have fixed for reading, listening and revising. ठीक है? And the most important thing which I told you was what? Think in English. 24 hours think in English. बच्चों से बात कर रहे हो, ऑफिस में बात कर रहे हो, रिक्शा वाले से बात करो, किराना वाले से बात करो, बनिया वाले से बात करो, किसी भी बात करो, पहले इंग्लिश में सोचो, फिर जो भी बोलना जी है। सोच अपना जो है थॉट प्रोसेस जो इंग्लिश में कन्वर्ट होना चाहिए। Then only you will see lot of development happening in using English language comfortably. ठीक है? सर। ठीक। चलो then, you have a nice day. Bye bye. बाय।